students, in this video we are going to read English chapter 1, Who is a True Sports Person. In this chapter we are going to read the qualities of a true sports person and who is a true sports person. These are the characters of this chapter: Avi, Deepu and Sahil. Avi is the brother of Deepu. So let's start our new chapter. It was a beautiful evening. All the kids were playing in the park. Deepu and his friends were practicing football. They had a football match with another group in the park the next day. Deepu's brother Avi was coaching Deepu's team. As they were practicing, Avi noticed that Deepu was cheating. He used his hands to stop the ball and even pushed other players as he tried to get the ball from them. This was totally against the rules. Once during the game, the goalkeeper stopped Deepu's goal, even though it was evident that the football had not touched the net. Deepu kept on arguing that it was a goal. No one said anything because Deepu's brother was their coach. बहुत सुंदर शाम थी. सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे. दीपू और उसके दोस्त फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे और दीपू का भाई उनकी फुटबॉल टीम को कोच कर रहा था, क्योंकि अगले दिन दीपू की टीम का दूसरी टीम के साथ एक फुटबॉल मैच था. जब दीपू प्रैक्टिस कर रहा था तब दीपू के भाई अवी ने नोटिस किया कि दीपू खेलते समय चीटिंग कर रहा है. वो अपने हाथों से बॉल को रोक लेता था और दूसरे लोगों को धक्का भी मार देता था जब उसको बॉल किक करनी होती थी. एक बार की बात है, दीपू का जो कोच था अवी, उसने दीपू की बॉल को रोक लिया और उसको कहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो. पर दीपू फिर भी नहीं माना और बोलता रहा कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा गोल है. अवी knew what he had to do. He called Deepu and took him aside. Deepu, what are you doing? He asked. I can clearly see that you are cheating. Is this what I have taught you? अवी को पता था कि उसको दीपू को कैसे बताना है कि वो चीटिंग कर रहा है. दीपू को उसने अकेले में बुलाया और कहा कि दीपू, तुम देख सकते हो और हम सब भी देख सकते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो. क्या ये सब वही है जो मैंने तुम्हें सिखाया है? दीपू knew what his brother was talking about, but he said, I want to win and I am a good sports person and I can't lose. दीपू जानता था कि उसका भाई उससे क्या कह रहा है, पर उसने कहा कि उसको जीतना है और वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है और वो कभी नहीं हार सकता. Avi was upset with his brother's attitude, but he did not show it. Avi knew that though he had taught Deepu how to play football, he had forgotten to teach him how to be a true sports person. He decided to teach Deepu a very important lesson. He asked Deepu to go home to get his new football, then called all other players to the center of the field. He told them that he could see that Deepu was cheating and that it was now time that he was taught some sportsmanship. Avi explained how he needed the players to help. अभी अपने भाई के इस एटीट्यूड से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया, पर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा. अवी ने अपने भाई दीपू को फुटबॉल खेलना तो सिखाया था, पर यह सिखाना भूल गया था कि एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है. अब उसने डिसाइड किया कि वो दीपू को सिखाएगा एक बहुत ही ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है. दीपू से उसने कहा कि जाओ घर से एक नई फुटबॉल लेकर आओ. फिर उसके बाद अभी ने सारे प्लेयर्स को ग्राउंड के फील्ड में सेंटर में बुलाया और सबको समझाया कि उसको कैसे कि उन सबको अभी की कैसे हेल्प करनी है. He told साहिल to behave just the way Deepu had behaved while playing. उसने साहिल से कहा कि तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना है जैसा दीपू सबके साथ करता है खेलते समय. When Deepu come back, the game started again. Now Sahil started targeting Deepu. He pushed him as he tried to get the ball. He used his hands to snatch the ball. Finally, Deepu managed to get the ball. He was about to score a goal when Sahil shouldered him and he fell on the ground. जैसे ही दीपू वापस आया, उसने गेम खेलना शुरू करा. फिर साहिल ने दीपू को टारगेट करना शुरू करा जैसे कि दीपू सबके साथ करता था. साहिल ने अपने हाथों से बॉल को रोका, दीपू को धक्का भी मारा, जिस वजह से दीपू ज़मीन पर गिर गया. Why are you pushing me, Sahil? Deepu shouted. It's against the rules. I can't enjoy my game like this.
तभी दीपू चिल्लाया कि साहिल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं अपना गेम ना तो खेल पा रहा हूँ और ना ही इंजॉय कर पा रहा हूँ। ये सब गेम्स के रूल्स के अगेंस्ट में है। बट यू वर डूइंग द सेम विद अस, वी आर नॉट एबल टू enjoy our game either, replied Sahil. The others player nodded in agreement. Deepu now knew how everyone had felt when he had been cheating. Because of him, no one had been able to enjoy the game. He apologized and promised not to cheat again. तभी साहिल ने कहा कि तुम भी बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही करते थे। तभी सारे प्लेयर्स ने अपने हाँ में हाँ मिलाई। फिर दीपू समझ गया कि जब वो ऐसा करता था तो कोई भी अपना गेम नहीं खेल पाता था और ना एंजॉय कर पाता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने कहा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और प्रॉमिस करा। आई एम सॉरी दीपू दैट वी हैड टू टीच यू अ लेसन दिस वे, अभी सेड एज दे वॉकड टूवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम। इट इज़ रॉन्ग टू चीट, अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन इज़ वन हु नेवर चीट्स, ही enjoys द गेम एंड ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट। जब दीपू ड्रेसिंग रूम में जा रहा था तभी उसका भाई अभी आया और उसने उससे कहा कि आई एम सॉरी दीपू कि मैंने तुम्हें इस तरीके से ये लेसन सिखाया, पर ये गलत है। एक सच्चा स्पोर्ट्स पर्सन वही होता है जो कभी चीटिंग नहीं करता, अपना गेम इंजॉय करता है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ए ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन इज़ वन हु प्लेज फेयरली, ही कंटिन्यूड। Enjoyment should come first, and we should think of winning or losing as part of the game. Your victories should not make you proud, and your losses should not make you weak, said Avi, putting his hand on Deepu's shoulder. एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो कि ईमानदारी से अपना गेम खेलता है। हमेशा इंजॉयमेंट पहले आना चाहिए, उसके बाद हारना और जीतना एक गेम का पार्ट होना चाहिए। हमारी विक्ट्री या फिर हमारी जीत हमें प्राउड फील नहीं करवाना चाहिए और हमारी हार या फिर हमारा गेम हार जाना हमें वीक फील नहीं करवाना चाहिए। अभी ने ये सब दीपू को समझाया। दीपू अंडरस्टूड दैट चीटिंग वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ही लर्नड टू बी अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन एंड वॉज एबल टू enjoy हिज गेम मोर। दीपू समझ गया था कि चीटिंग करना गेम्स के रूल्स के खिलाफ है और एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अपना गेम को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करता है। सो स्टूडेंट्स, in this chapter we read who is a true sports person. A true sports person is the one who plays his game fairly while enjoying the game and giving his best to win the game. So this is the main message of the chapter of this book.